السلام علیکم و علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ جو قادر مطلق اور پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور سب سے پہلے خبر شامل کریں رحیم یار خان کے تیمور کالونی میں محکمہ سوئی گیس کی من مانیاں۔ دوسروں کو گیس مہیا کرنے پر نابینا افراد کے میٹر کاٹے گئے، الزام غلط ثابت ہونے پر بھی 7 ماہ سے میٹر نہ لگائے گئے۔ نابینا شہریوں کا کہنا ہے کہ 10,000 روپے فی میٹر رشوت مانگی گئی ہے اور عملے کی جانب سے رشوت نہ دینے پر میٹر نہ لگانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ نابینا شہری نے دہائی دیتے ہوئے کہا، آنکھوں سے نابینا ہوں، کہاں سے رشوت دوں؟ مطالبہ کرتا ہوں کہ انکوائری کر کے دوبارہ میٹر نصب کیے جائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں رحیم یار خان کی تیمور کالونی میں محکمہ سوئی گیس کی من مانیاں، دوسروں کو بھی گیس مہیا کرنے پر نابینا افراد کے میٹر کاٹے گئے، الزام غلط ثابت ہونے پر 7 ماہ سے میٹر نہ لگائے گئے۔ نابینا شہریوں کا کہنا ہے کہ 10,000 روپے فی میٹر رشوت مانگی گئی ہے اور عملے کی جانب سے رشوت نہ دینے پر میٹر نہ لگانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ نابینا شہری نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ آنکھوں سے نابینا ہوں، کہاں سے رشوت دوں؟ مطالبہ کرتا ہوں کہ انکوائری کر کے دوبارہ میٹر نصب کیے جائیں۔ خانیوال محکمہ ہائی وے کی نااہلی کے سبب بہاولپور تا کراچی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے۔ رپورٹ کریں گے طاہر عباس۔ خانیوال تا بہاولپور کراچی روڈ عرصہ دراز سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول بن گئے، زخمی ہو کر شہری ہسپتال منتقل ہونے لگے۔ روڈ پر گڑھے پڑنے کی وجہ سے متعدد بار حادثات رونما ہو چکے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی، مگر محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ شہریوں اور ٹرانسپورٹروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہماری اہل علاقہ شہریوں سے بات ہوئی تو وہ خاصے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ شہری نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میری وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایکسین ہائی وے سے اپیل ہے کہ ہمارا یہ روڈ آئے دن حادثات کا سبب بنتا رہتا ہے۔ یہ روڈ اوور ہیڈ برج سے شروع ہو کر میر شاہ ہائی وے تک سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متعدد بار اس روڈ کے متعلق احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، اس روڈ کو بنایا جائے، تحریری طور پر آگاہ بھی کیا گیا، مگر محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ آئے روز روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشہ خراب ہو جاتے ہیں اور اب تک کئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس روڈ کی تعمیر و نو کام فوری طور پر کروایا جائے تاکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر عباس، سچ نیوز، خانیوال۔ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ ڈرائیورز کی ذرا سی غفلت، قیمتی جانیں نگل گئی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 3 افراد جان سے گئے۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام۔ حافظ آباد میں موٹر وے M2 کوٹ سرور کے قریب ٹریفک حادثہ 1 جان لے گیا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ نواب شاہ میں سڑک پار کرتے ہوئے بچی جان سے چلی گئی۔ خانپور میں ٹرک اور بس میں تصادم ہو گیا، حادثے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بس صادق آباد سے شجاع آباد جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ گجرانوالہ میں کار چوری کر کے فرار ہونے والا چور تیز رفتاری کا شکار بن گیا۔ گاڑی دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے چور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ میرپور خاص میں حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے میرپور خاص ضلع متاثر ہوا۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کر کے خیمہ بستیوں میں منتقل ہو گئے۔ خاص میں بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس کے بعد میرپور خاص کی تحصیل جھڈو، نوکوٹ اور میروا سمیت پورا ضلع شدید سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب چکی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے مال و اسباب کا نقصان دیکھ کر مجبور مکین سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ علاقہ مکین بے یارو مددگار نقل مکانی کر کے خیمہ بستیوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ صدر اور گورنر سندھ سمیت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین براور بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی متاثرین کی مدد کرنے کے لیے میرپور خاص پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما سمیر میر شیخ نے میرپور خاص کے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔
जहां की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ज़िशान शेख रिपोर्ट करेंगे। इंसाफ सिंध के रहनुमा सुमेर मीर शेख ने मीरपुर खास का दौरा किया। सुमेर मीर शेख का मीरपुर खास के सैलाबी इलाकों का दौरा करते हुए कहना था कि मुतासरीन बरसात व सैलाब का भूख प्यास गर्मी की शिद्दत से बदहाल गरीब आवाम की हालत इजहार है, पर सिंध हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं। अफसोस का इजहार है, सिंध हुकूमत के हुक्मरानों को ये गरीब दिखाई क्यों नहीं देते। आज जबकि बिलावल जरदारी भी यही मौजूद हैं, मगर अपने सर्कल से बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं लगता, वो सिर्फ आवाम में जलसे करने को आए हों। सुमेर मीर शेख का कहना था कि वफाक की जानिब से मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है। लोगों को राशन, टेंट और मच्छरदानियां भी तकसीम की गई है, जिसका अमल अभी जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर गरीब की मदद करेगी। हम मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। सुमेर मीर शेख का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने आवाम को अकेला छोड़ा हुआ है। मैं अपील करता हूँ कि वो मुतासरीन को इमदाद में मदद करें। लालिया के इलाके कलरी के करीब सेम के बंद में शगाफ पड़ गया, ज़रई राजी ज़ेरे-आब आ गई, फसलें डूब गईं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्बास की इस रिपोर्ट में। चिन्योर की तहसील लाले में कलरी नूरपुर भुट्टा के करीब सेम नाले का बांध टूट गया। सेम नाले के बांध में तकरीबन 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से तकरीबन 100 एकड़ पर गन्ना और धान की फसल ज़ेरे-आब आ गई, जिससे किसान को परेशानी का सामना है। 3-4 दिन नहर न शगाफ बड़ा चौड़ा होया जी, ते बड़ा नुकसान होया फसलों का, मकई, ज्वार, बोसा वगैरह सारा ही मतलब खराब हो गया है। ते हुण अज 1122 ते कॉल हुई है, आ गए फौरन ते पुलिस वाले पहुंच गए, बाकी अफसरान ही काम जड़ा न जो हो रहा है। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 असिस्टेंट कमिश्नर लालिया, SHO थाना मोहम्मदवाला और महकमा सेम का अमला मौके पर पहुंच गया है। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। बारिशों के बाद जमा होकर जोहड़ की शक्ल इख्तियार करने वाला पानी में बदबू पैदा हो रही, तो दूसरी जानिब पानी में कीड़े मकोड़े के साथ साथ मच्छरों की भी बहुतात होने लगी है। अगर बरवक्त स्प्रे न करवाया गया तो दीगर बीमारियों के साथ मलेरिया जैसे मौलिक मर्ज के फैलने का खदशा है। आसिफ रजा की रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिशों से जहां मौसम में तब्दीली रूनुमा हुई है, तो बारिश के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है, जिससे मरीजों का क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर रश नजर आने लगा। बारिश से जमा होने वाले पानी जो जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो दूसरी जानिब गटरों ने भी गंदा पानी उबलना शुरू कर दिया है, जिससे गली मोहल्लों में जमा होने वाले पानी में हशरातुल अर्द के साथ साथ मच्छरों की बहुतात ने भी इलाका मक्खियों की नींदें हराम कर दी हैं, जिससे इलाका मक्खियों को परेशानी का सामना है। और फिक्र लाहिक है, अगर इसी तरह गंदगी फैलती रही और पानी की निकासी को मुमकिन ना बनाया और बर वक्त मच्छर मारी स्प्रे ना कराया, तो मच्छरों की अफजाइश में मजीद इजाफा होगा, जिससे मलेरिया जैसी मौलिक बीमारी फैलेगी। बरसात के बाद तो बहुत बुरा हाल है, हमारे मच्छर हुए, बहुत मच्छर है, मक्खी है, बड़े तंग आ रहे हैं, मच्छर रात को सोने नहीं देते, पूरा मोहल्ला तंग है। शहरियों का एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा कि सफाई का निजाम दुरुस्त कराया जाए और पूरे शहर में मच्छर मार स्प्रे कराया जाए, ताकि लोग मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। की तबाहकारियां बेडसुई के बस्ती अंदरा सैलाब की वजह से खंडरात में तब्दील हो गई। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। हालिया फ्लड की तबाहकारियां अरूज पर ठुलमजा से मलक्का कच्चे के इलाके बेडसुई में वाक़े बस्ती गुलाम रसूल इंदिरा सैलाब की जद में आने की वजह से खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कमरों समेत 4 दीवारियां गिर गईं। पूरी बस्ती खंडरात का मंजर पेश करने लगी। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी पानी के जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, मलेरिया जैसी मोजी मर्ज फूट पड़ी, लोग बीमार होने लगे। इस बारे मुतासरीन ने बताया कि दरिया चनाब में तोगयानी के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया तो कमरों समेत 4 दीवारियां खंडरात का मंजर पेश करने लगी। हुकूमती इमदाद सिर्फ कागजों की हद तक महदूद। हमारे पास न कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा, न सियासी। मुतासरीन ने मजीद बताया कि बेरोजगार बड़े बैठू, पत्थर पे बैठू, कोई चीज का नहीं, गरीब लोग कहीं शख्स से मिलता हूँ नहीं किता होने वाला जरा फलाट है, सारे घरों में पानी पाए गए, गरीब लोग हैं, सारे नाल कोई हुकूमत, कोई जिम्मेदार, कोई शायद पर सारे नाल तामुन का नहीं। मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि खंडरात का मंजर पेश करने वाले हमारे घरों का सर्वे करके नुकसानात का अजाला किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठोलमजा। चौक सरवर शहीद में आवारा कुत्तों की भरमार। एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने गली में खेलते 4 बच्चों को जख्मी कर दिया। शहरियों का गलियों से गुजरना दुश्वार हो गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी रिपोर्ट में।
चौक सरवर शहीद के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आवारा कुत्ते दिन और रात गली बाजारों में घूमते नजर आते हैं। गलियों में खेलते 4 छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चों को सरवर शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। आवारा कुत्तों की वजह से मामूल के मुताबिक आमदरफ्त वालों और इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चौक सरवर शहीद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫालतू ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। मोहल्ला 5 मरला स्कीम और मज़र मार्केट मोहल्ला अलीपुरा में आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा भरमार है। एक दिन में कम से कम 5 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काटा है। तो सूरत हाल यह है कि अब बच्चे खौफ के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर गार्ड और आला हकाम से मुतालबा है कि इन आवारा कुत्तों को तलब किया जाए। हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ बच्चे अक्सर बाहर गलियों में खेलते हैं और उसी खेल के दौरान कुत्ते भी यहाँ बहुत मौजूद होते हैं और ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुत्ते जो हैं अक्सर अब बच्चों को काटने लगे। इलाका मकीनों की जानब से म्यूनिसिपल कमेटी अमले को मुतअद्दिद बार आवारा कुत्तों के मुतल्लक आगाह किया गया, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करके गलियों में गुजरने वाले शहरियों और बच्चों की जिंदगी दाव पर लगा रखी है। चौक सरवर शहीद के बासियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद में आवारा कुत्तों की तलफी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि बच्चे सुकून के साथ अपने गलियों में खेल सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। खैरपुर के रिहायशी मजदूरों के 4 बच्चे पुरअसरार बीमारी के बायस माजूर हो गए। मेहनतकश इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतजर है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर के रिहायशी मजदूर मुजाहिद चन्ना के 4 बच्चे पैरालिसिस बीमारी के बायस माजूर बन गए हैं, जिनके इलाज में मदद की खातिर वालिदैन ने मुंतखब नुमाइंदों को कई बार जाकर इल्तिजा किए पर किसी ने भी कोई मदद नहीं की। सिंध हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि माजूर बच्चों के इलाज और उनकी माली मदद करके उन्हें परेशानी खत्म करें। कैमरा टीम के साथ अली गौहर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। शेखुपुरा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बगैर हिकमत अमली अपनी सीट पर बरजमा है। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। ओहदेदारान की मनमानियां जारी हैं। कवायद व ज़वाबित को बलाए ताक रखते हुए शेखुपुरा में तामीरात की खुली छुट्टी दे रखी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा, एमओपी और म्यूनिसिपल कमेटी के इंस्पेक्टरों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। भारी रिश्वत के एवज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर प्लाजे और कमर्शियल दुकानें तामीर करने की इजाजत दे रखी है। करप्ट और रिश्वतखोर माफिया कौमी खजाने को भरपूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। नक्शा पासिंग और दीगर कानूनी कवायदो ज़वाबित की मद में कौमी खजाना में जमा होने वाली रकम करप्ट अफराद की जेबों में महफूज हो रही है। वजीर आजम इमरान खान के विजन करप्शन फ्री पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर अली जोया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें खालिद रोड, शरकपुर रोड, चौक, फैसलाबाद रोड, डिक्की रोड, लाहौर रोड और दीगर जगहों पर ऐसी तमीरात जारी हैं जिनके बारे में बाज़ौक़ ज़रा से पता चला है कि नक्शाजात पास न होने के साथ साथ कानूनी कवायदो ज़वाबित को मद्देनजर न रखा गया है। जिली इंतजामिया के साथ साथ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब से इस मसला की तरफ खसूसी तवज्जो की अपील की है। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। शाहकोट में होने वाली बारिशों से सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकत अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शाहकोट में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। हालिया दिनों में होने वाली बारिशों से सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, जिसकी वजह से शहर के निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टीएमए ऑफिस के अतराफ की आबादी समेत बट चौक, ननकाना रोड, जड़ावाला रोड, दरबार रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि भाईजान, हमारा ये मसला है कि हमारे घरों में जब बारिश होती है तो घरों के अंदर पानी चला जाता है और अक्सर ये जो सीवरेज बंद रहता है। हम रोजाना टीएमए, ये साथ ही हमारे टीएमए का दफ्तर है, इधर जा के हम थक गए। कोई भी आके हमारी फरियाद नहीं करता। आते हैं, देख के चला जाते हैं और कोई काम नहीं करते। इधर आके हम असिस्टेंट कमिश्नर साहबा भी आती हैं, आके बस गाड़ी पे घूम के चले जाती हैं और देखती तक नहीं है कि उतर के नहीं देखती हैं। इनका क्या करें। शहरियों की हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। मियांवाली कुरैशिया की कुदरती झील इंतजामिया की नजरों से ओझल है। कई मीलों तक फैली झील अब सिमट कर मुख्तसर हो गई। राशिद रफीक की रिपोर्ट देखिए।
घाघड़ी झील जिला रहीम यार खां की तारीखी पस मंजर रखने वाली झील है, जो कभी दरियाए हाकड़ा का हिस्सा हुआ करती थी। सराइकी जुबान में ढांड झील को कहते हैं और लफ्ज हाकड़ा दरिया से मनसूख है। मकामी लोगों के मुताबिक ये झील कई मीलों तक फैली हुई थी और यहाँ पर नवाब अब बहावलपुर के साथ साथ बरसगीर की दूसरी रियासतों के राजे महाराजे भी सैर के लिए नवाब साहब के साथ आते थे और इस झील से मछली और मरगाबी का शिकार किया करते थे। ढंड घाघड़ी झील बहुत पुरानी है। यहाँ पर बरसगीर रियासतों के कई नवाब ऑफ बहावलपुर के हमरा सैर करने और शिकार करने अक्सर यहाँ पर आया करते थे। इसके अलावा पहले यहाँ लोग दूर दूर से लोग तफरीह करने और शिकार करने आते थे। अब ढंड घाघड़ी झील वैरान हो चुकी। अभी भी आसपास के इलाकों के सियाह यहाँ आते हैं, मगर झील में पानी की कमी की वजह से मायूस होकर लौट जाते हैं। अगर इंतजामिया झील पर तवज्जो दे तो ये एक जबरदस्त तफरीह मकाम के तौर पर उभर सकता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रफीक, सच न्यूज, मियां वाली कुरैशिया। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद होने वाले धरती के निडर सपूत मोहम्मद साजिद की नमाज जनाजा आबाई इलाके समंदरी में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। शहबाज मदनी की रिपोर्ट देखिए। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। समंदरी के रहायशी फौजी मोहम्मद साजिद वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से शहीद हो गए। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहम्मद साजिद को फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। तदफीन के बाद शहीद को सलामी भी दी गई। शहीद साजिद के पसमानदान में बीवी, 2 साल का बेटा और 2 माह की बेटी शामिल है। तदफीन के मौका पर हर आंख अश्कबार शहीद फौजी साजिद वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की जानब से लगाई गई बारूदी सुरंग फटने से शहीद हुए। शहीद का आबाई गांव समंदरी का नवाही गांव 218 गावे है। 218 गावे में ही शहीद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन की गई। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। सानिया रिंग रोड के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया। खवातीन ने मुलव्विस तमाम अफराद को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर मोटरवे में खातून पर होने वाले जुल्म के खिलाफ डेरा इस्माइल खान की खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ दो के नारे दर्ज थे। इस मौके पर खवातीन मुजाहिरीन का कहना था मुल्जिमान को कुरान और सुन्नत के मुताबिक सजाएं दी जाएं। ऐसी दरिंदगी करने वाले मुल्जिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए ताकि दोबारा ऐसा अफसोसनाक वाकया रूनुमा न हो सके। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। लैया में सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज कर दिया गया। सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम कार्ड का हामिल शख्स सालाना 7,20,000 रुपए का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। आम शहरियों तक सेहत की सहूलियात पहुंचाना जहां हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है, वहीं जमहूर का बुनियादी हक भी। लिया में गरीब शहरियों के इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिला में जिला कौंसिल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लिया, मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली सैयद रफाकत अली गिलानी, सदर PTA बाबर खान कितरान समेत खवातीन और हज़रात की कसीर तादाद शरीक हुई। सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए इंसाफ कार्ड का हामिल शहरी 7,20,000 तक की रकम का इलाज मुआवजा मुफ्त करा सकेगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लिया अस्तर जिया का कहना था, लिया की आधी आबादी सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद हो सकेगी। सेहत इंसाफ कार्ड मेरिट और शफाफियत की बेहतरीन मिसाल है। इस दौरान उनका मजीद कहना था, एहसास प्रोग्राम के तहत लिया को 10,000 रुपए का पैकेज मिला है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। सिंध के इलाके रत्तो डेरो में वापडा हाइड्रो यूनियन की तरफ से जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सोहेल अब्बास रिपोर्ट करेंगे। वापडा हाइड्रो यूनियन की तरफ से रत्तो डेरो में जबरी रिटायरमेंट किए गए मुलाजिमों की बहाली के हवाले से एहतजाज। सैयद इमरान अली शाह, मोहम्मद असलम जुनेजो की निगरानी में कसीर तादाद में मुलाजिमों ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सेबको की जानिब से मुलाजिमों की जबरी बरतरफी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन रत्तो डेरो की तरफ से ओहदेदारों ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि एक्सीएन लारकाना मुश्ताक अहमद बुर्दी ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए लारकाना के मुख्तलिफ तहसीलों से 12 लोग, जिनमें रत्तो डेरो के ALM मोहम्मद यूसुफ भुट्टो, गुलाम असगर दामरा, मीटर रीडर इमाम जुनेजो, अब्दुल हमीद भुट्टो, LM गुलाम रसूल ब्रूडो और नईम अख्तर सुमरो को मुश्ताक बुर्दी ने झूठे इल्जाम लगाकर जबरी रिटायर किया है। ऐसे अमल के खिलाफ आज हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर मुलाजिमीन के साथ इंसाफ न किया गया तो हम एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे। और उन्होंने हुकूमत और वापडा के सेक्रेटरी से अपील करते हुए कहा है कि राशि करप्ट एक्सीएन मुश्ताक बुर्दी को हटाया जाए और मुलाजिमीन से बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ सोहेल अब्बास, TV रत्तो डेरो। टंडो अलायार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडो आदम में जांबक होने वाले नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
टंडो आदम में मंशात फरोशी के खिलाफ पाकिस्तान खास के लिए इताद की जानिब से निकलने वाली रैली में नामालूम अफराद की जानिब से हमले के दौरान शदीद जख्मी होने वाले अकबर खासकेली के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान खास के लिए इताद सिटी टंडोलयार की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर टंडो आदम पुलिस, मंशात फरोश और नौजवान अकबर खासकेली के कत्ल के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मकामी रहनुमा इमरान खासकेली, इफ्तिखार खासकेली, मेहदी हसन खासकेली और दीगर ने कहा कि बेगुनाह हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है। पुलिस मंशात फरोशों का साथ देने में मसरूफ है। इन्होंने आईजी सिंध और दीगर आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अकबर खासकेली के कातलों को गिरफ्तार किया जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इम्तियाज हुसैन, टच टीवी न्यूज, टंडोलयार। हाफिजाबाद में जायदाद की खातिर भाइयों की कैद में जंजीरों में जकड़ा माजूर शख्स को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। 2 भाइयों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया, रिश्तों में रवादारी का पास न रहा। हाफिजाबाद के नवाही इलाके में सगे भाई जल्लाद बन गए। जायदाद नाम करने का मुतालिबा न मानने पर सफाक भाई जान के दुश्मन बन बैठे। मोहल्ला सादात कॉलोनी के रिहायशी माजूर शख्स सज्जाद अली उसके सगे भाइयों ने जंजीरों से बांधकर कमरे में कैद कर दिया। माजूर भाई को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अहले इलाका ने इत्तला पुलिस थाना सदर को दी तो 5 रोज से कैद जंजीरों में जकड़े माजूर सज्जाद अली को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। 2 भाइयों समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, जाली पीर बनकर सादा लो अफराद को लूटने वाले गिरोह के 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। दीपालपुर थाना सिटी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रीन सिटी में जाली पीर ऑनलाइन पीरी मुरीदी चला रहे थे और सादा लो अफराद को लूटते थे। मुतअद्दिद शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर में पुलिस ने जदीद सिस्टम टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए इन पीरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद मुल्जिमान को पकड़ने के लिए टीम तश्कील दे दी है। अब बात करें बढ़ती महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई ने आवाम को नाकों चने चबवा दिए। सिब्बी में 20 किलो आटा का थैला 1400 रुपए, जबकि चीनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब पहुंच गई। देखिए सिब्बी से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। अशियाए जरूरत बाजार में चीनी और आटा नायाब होने के साथ साथ आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहर के तमाम छोटे बड़े दुकानों पर आटा और चीनी की कीमतें अपनी जोबन पर पहुंच गई। 20 किलो का थैला 1300 से 1400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि रई सही कसर 90 से 100 रुपए में बिकने वाली चीनी ने पूरी कर दी। आटा आज लेने के लिए मैं बाजार आया तो 1300 से 1400 रुपए बोरी आटा है और लिहाजा 500 रुपए जो ना मजदूरी है सारे दिन की, तो इसमें किधर पूरा होता है सर। मैं तो घूम घूम कर थक गया, किधर भी जो ना यूटिलिटी पर भी आटा नहीं मिलता है। लिहाजा मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि चीनी भी जो है ना 90 से 100 रुपए किलो तक है, इसमें गुजारा नहीं है। आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी। जेलम की तहसील दीना में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू है ही, मगर तहसील दीना की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से दुकानदार अशिया खुरनोश की कीमतें मुंह मांगे दामों वसूल कर रहे हैं। मसनूई महंगाई की वजह से अशिया खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका फाकों पे मजबूर है। फ्रूट की तरफ देखो, सेब 200 रुपए, केला 200 रुपए, अगर सब्जी लेने के लिए जाए 30 रुपए 50 रुपए का कोई मसाला नहीं देता। अगर देना भी चाहिए हजार बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए इन सारे गरीबों की गुजारिश है कि सारी महंगाई है ना थोड़ी सी कम करें। सब्जियां तो बहुत सारियां महंगियां कर छड़ियां ने, इस करके जनाब हम मुर्गे का पता करना आए हैं कि गरीब बंदा तो बड़ा परेशान हो गया कि सब्जी तो 100-150 तो घाटे आई कोई नहीं। इस टाइम आटा चीनी घ्यो जड़े ने वो भी सही हाई लेवल तक जा रहे हैं। महंगाई इतनी गरीब बंदे नहीं पहुंचती, वैसे ही दूर। इंतजामिया की मिली भगत दुकानदार दीदा दलेरी से अपने अपने रेट लगाए बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी दीना के ऑफिसरान दफ्तरों में बैठ के महजूज हो रहे हैं और गरीब मुनाफाखोरों के हाथों लुट रहे हैं, जिसकी वजह से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। यहाँ पे जो आए हुए खरीदार थे उनका कहना था कि दुकानदारों की तरफ से खुद साख्ता महंगाई की गई है, जिसकी वजह जो है चेक एंड बैलेंस का ना होना है।
डीसी जिला हम यहाँ पे नोटिस लें ताकि ये खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त खाना मुश्किल हो गया। जानजेब अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हालिया महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा 70 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और दूध 110 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीब शहरियों को रिलीफ देने के वादे किए थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। गरीब आदमी बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सका। हर बंदा 1 रुपए के लिए परेशान है और अपने घर के लिए राशन तक नहीं ले सकता। कि महंगाई मुल्क में इतनी हो गई है कि खुदा की कसम हम खरीद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, खरीद के रोटी नहीं खा सकते हैं। शहरियों ने मजीद कहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमती मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करवाने में अमली तौर पर इकदाम करे ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। विहाड़ी के इलाके लडन में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया खुर्दनोश में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फलों और सब्जियों के दाम में भी इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। मोहम्मद काशिफ सहू की रिपोर्ट देखिए। लंदन में अशिया खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनमें रद्दो बदल नजर आ रहा है। अगर सब्जी की बात करें, फलों की बात करें तो इनके दाम में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान नजर आते हैं। अगर बात करें लहसुन, टमाटर और अदरक की तो इनकी कीमतों में भी 20% इजाफा हो गया है। अगर फलों की बात की जाए तो केले और आम की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस हवाले से ग्राहकों का कहना है कि इंतजामिया एक्शन ले, जिन चीजों की कीमतें ज्यादा हैं वो सस्ती की जाए। कैमरामैन शहजाद साहू के साथ मोहम्मद काशिफ साहू, सच न्यूज, लंदन। महंगाई का सुनामी सब कुछ बहाकर ले गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। ठुलमजा के शहरी परेशानी से दो चार हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। इंसानी कीमती जाने बचाने वाली अद्वियात के रेट आसमान से बातें करने लगे। हर वो चीज जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में है के रेट दुगने हो गए। जो मेडिसिन पुराने पाकिस्तान में 50 रुपए में मिलती थी, नए पाकिस्तान में डबल रेट पर मिलने लगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई। दिहाड़ीदार तबका घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया खरीद कर घर चलाए या महंगे दामों अद्वियात खरीद कर जिंदगी बचाए, सोचने पर मजबूर। छोटे तबके के लोगों ने बताया कि इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद थी कि इमरान आएगा, कुछ करके दिखाएगा। अब ये उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि हमसे जीने का हक न छीना जाए। कम अज कम इंसानी जाने बचाने वाली अद्वियात के रेट तो कम किए जाएं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुलमजा। डस्का में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से नवीद इकबाल। डस्का में महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। जो रेट जो है वो डबल हो चुके हैं और इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे कि किस तरह रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई का ऐसा हकदा बन गया जी चीज कल 100 रुपए किलो ही आज 150 रुपए किलो मिलती है। हर चीज फ्रूट इन्नी अग लाती है इन्होंने कि जो लोग खरीदन जो है ही नहीं। उधर चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। बढ़ती महंगाई से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है। तमाम अशिया खुर्दनोश, सब्जी, दालें, आटा, फ्रूट, गोश्त, अद्वियात की कीमतों के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। वजीर आजम पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर पर 5 अशिया जरूरिया पहुंच पैकेज अमल दरामद नहीं हो सका। 7 के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी गायब हो गई। अवाम महंगे दामों पर आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। 7 शरीफ में मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी गायब हो गए, जिसके बाद अवाम ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर पर अवाम को रिलीफ पैकेज दिया था और पैकेज के तहत आटे, चीनी समेत 5 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी गई थी। वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर आटे की 20 किलो थैली की कीमत 800 रुपए और चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ताहम सब्सिडी के ऐलान के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी ही गायब है और यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया 7 शरीफ ने भी आटे और चीनी की किल्लत का एतराज कर लिया है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से 7 शरीफ में मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी के फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजा सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज, 7 शरीफ।
सहवाल में भी रोटी और नान की कीमत दुगनी हो गई। गरीब मजदूर तबका का अपना और अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट देखिए। रोटी और नान की कीमत दुगनी होने से अवाम 2 वक्त की रोटी खाने और अपने बच्चों का पेट पालने में मुश्किलात का शिकार। साहिवाल में रोटी 8 से 9 रुपए और सादा नान 15 रुपए फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब और मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। दुकानदारों ने आटे का थैला भी 1200 से 1300 तक फरोख्त करना शुरू कर दिया है। गरीब अवाम जाए तो जाए कहाँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही हैं और फील्ड में निकलकर अवाम को रिलीफ पहुंचाने से गुरेजा हैं। अगर तनूर वालों से बात की जाए तो इनका कहना है कि हमें आटा और मैदे का थैला ही इतना महंगा मिलता है कि हम हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी इनका पेट पालना है। तनूर मालकान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आटा माफिया के खिलाफ एक्शन लें और कीमतें कम करवाएं, जिससे इनके साथ साथ अवाम को भी रिलीफ मिले। रोटी महंगी हो गई है, नान महंगा हो गए हैं, फ्रूट महंगे, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगा, सिर्फ देख सकता है गरीब इंसान। जी रोटी पहले 5 रुपए की थी, अब जो है वो 8 रुपए की मिल रही है। नान पहले 7 रुपए का था, वो 15 रुपए का हो गया। गरीब अवाम क्या खाए क्या पकाए कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि आटा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ पहुंचाएं ताकि अवाम 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरामैन श्री मुगल के साथ मलिकत शाह मली, सच न्यूज, साहिवाल। कमीर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कबीर शरीफ मोड़, अड्डा शबील और मुल्हका देहात में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आने लगा। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अशिया खुर्दोनोश में आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर होने लगी। हुकूमत की तरफ से आम आदमी के लिए ऐलानात तो किए गए रिलीफ के, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत दूसरे कामों के साथ महंगाई पर भी तवज्जो दे। दौर दे विच अशिया खुर्दोनोश एक आम आदमी वास्ते इस हद तक ਉਹਦੇ रेट इतनी ऊपर चलिया गई ने भी फर्ज करो जिमें चीनी है 95 रुपये हो चुकी है, घ्यो है 210 रुपये तकरीबन किलो का मौजूदा रेट है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया है। मौजूदा दौर में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल में लाए। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कबीर। मुल्तान के इलाके बस्ती व बूटेवाला में महकमा ज़राअत के शोबे पेस्ट वार्निंग ने जाली ज़रई अद्वियात की फैक्ट्री पर छापा मारकर 1 करोड़ रुपए मालियत की जाली ज़रई अद्वियात बरामद कर लीं। मुल्ज़िमान जाली ज़रई अद्वियात मुल्क भर में सप्लाई कर रहे थे। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। महकमा ज़राअत पंजाब की जाली ज़रई अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शोबा पेस्ट वार्निंग ने बस्ती बूटेवाला में हाजी अल्ताफ हुसैन के पोल्ट्री फार्म पर कामयाब छापा मारा। छापे में 1 करोड़ रुपए की मालियत की ज़रई अद्वियात और दीगर मटीरियल बरामद कर लिया गया। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग शाहिद हुसैन, दीगर अफसरान और पुलिस एहलकारों के हमरा छापा मारा। जाली ज़रई अद्वियात के लेबल्स पर इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मूलेटर और डिस्ट्रीब्यूटर के नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। पैकिंग मटीरियल पर तारीख तैयारी और एक्सपायरी, बैच नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैक कनंदा की तमाम मालूमात जाली थी। कब्जा में ली गई जाली दानेदार, कार्बोफ्योरान और दीगर मटीरियल शामिल है। मुल्ज़मान टोटल केयर पेस्टिसाइड्स के नाम से जाली ज़रई अद्वियात गैर कानूनी तरीके से पैकिंग और फॉर्मुलेट करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। 2 मुल्ज़मान मोहम्मद आबिद और मोहम्मद आकाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जाली ज़रई अद्वियात के नमूने हासिल करके तज्जिया के लिए लिबॉर्टी भिजवा दिए गए हैं, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना मुमताज़ाबाद में FIR के इंदराज के लिए इस्तग़ासा जमा करवा दिया गया है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। अब बात करें मौसम की, तो मौसम की बदलती रुत, कहीं बारिश का इम्कान तो कहीं मौसम गर्म। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने सवात, मकरान, गलगित बल्तिस्तान में बारिश की नवीद सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम दीर, सवात और कोहिस्तान के अजला में बारिश का इम्कान है। सिंध में सूरज का पारा हाई रहा। ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़, नगर पार, थार पारकर और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मकरान की साहिली पट्टी समेत लसबेला में मुतला जुज़्व अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। गलगित बल्तिस्तान में मुतला जुज़्वी अब्र आलूद रहेगा।
मानसून के मौसम में कौसे कयास के बहार रंग बदलते और मी बरसाते बादल जहां हवस और गर्मी से मुरझाए चेहरों पर खुशियां बिखेरते हैं, वहीं खेत खलियानों में एक बार फिर बहारों के रंग बिखेरते हैं। रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। आसमां कैसे कैसे, जिसकी अमली शक्ल मानसून के मौसम में खुलकर सामने आती है, जहां देखते ही देखते आसमान पर उड़ती सफेद रंग के गालों जैसी बदलियां, आवारा मिजाज, इधर से उधर नील गूं आसमान पर चमकते सूरज के सामने से झूम झूम कर अटकेलियां करती गुजरती हैं, तो सूरज भी शर्मा कर इनकी ओट में चला जाता है। और फिर वक्फे वक्फे से आसमान पर बादल ऐसे कौसे कजा के रंगों में ढलते हैं कि हर देखने वाली आंख कुदरत के इन नजारों में कहीं खो सी जाती है। मानसून में रंग बदलता आसमान और बरसते बादल जहां हब और गर्मी से मुरझाए चेहरों पर खुशियां बखेरते हैं, वहीं खेत खलियानों में एक बार फिर से बहारों के रंग जम जाते हैं। गुलों, शगुफों और कलियों पर आया जोबन देखने वालों की रूह तक को सैराब कर देता है। ऐसे में मरतूब आबो हवा की छाई उलझने भी दम तोड़ देती हैं। हल्की फुल्की फवार के मजे लेता माहौल और भी सहर अंगेज हो जाता है और हर जी रूह की जान में जान आ जाती है। ऐसे में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश थमती जरूर है, लेकिन बरसना नहीं भूल जाती। इस तरह बारिश और बादलों की आंख मचौली जारी रहती है। फिर आसमान से बादलों की चादर हटाकर सूरज भी खुले खुले कौसे कजा के रंगों से अपनी आंखें ठंडी करता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कमालिया में शाहजहानी बाजार में बनाने वाले खुद से अपने रवायती और मुनफरिद डिजाइन की वजह से इलाके भर में मकबूलियत के हामिल हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में शाहजहानी बाजार में बनाए जाने वाले मुनफरद डिजाइन के हामिल खुद से मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, हर उम्र के लोग बड़े शौक से पहनते हैं। कारीगर बड़ी महारत से मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन के खुद से तैयार करते हैं, जो लोग बहुत शौक से खरीद कर पहनते हैं। दूर दराज के शहरों से बड़ी तादाद में लोग कमालिया से खुद से खरीदने के लिए आते हैं। कारीगरों का कहना है क्योंकि इसको हर यंग और बूढ़ा जो भी है उसको पहनता था। इसके फायदे ये हैं कि ये गर्मी में जब सख्त मौसम होता है तो ये चमड़ा जो है ना ये हीट अप नहीं होता, इस वजह से इस जूता पहनने से पाँव में जलन नहीं होती। पैरों में पसीना लगे तो जलब हो जाता है, ये कोई मसलन बीमारी वाली रोड़ा नहीं है, चमड़ा साफ सुथरा होता है। कोई बाकी मेहनत है, जितनी मेहनत कर रही है वो नहीं। चमड़े से बनाए जाने वाले ये खुद से शदीद गर्मी में पाँव के पसीने को जज्ब करते हैं और हीट अप नहीं होते और ना ही इनसे जलन होती है। ये बड़ी मेहनत और महारत का काम है, जबकि सादा खुस्सा एक दिन में तैयार हो जाता है। तिल्ले गज खुस्सा 3 से 4 दिनों में तैयार होता है। तिल्ले गज खुस्सा मुख्तलिफ किस्म के डिजाइनों में बड़ी महारत और खूबसूरती के साथ तैयार किया जाता है, जो कि लोग बड़े शौक से शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। नारान में सयाहत के लिए आने का मौका मिले और लोग राफ्टिंग न करें, ये तो हो नहीं सकता। वादी कुनहार में होने वाली राफ्टिंग के बारे में बताएंगे अदनान शाहिद अपनी रिपोर्ट में। में राफ्टिंग एक खतरनाक मगर मुनफरिद अमल है, जिसके लिए यहाँ पर दरिया किनारे मुख्तलिफ अफराद सियाहों को राफ्टिंग के मौके फराहम करते हैं। यहाँ आने वाले सियाहों को बाकायदा हिदायत दी जाती हैं। लोग आते हैं जी हाल पाकिस्तान से और मुख्तलिफ जगह से आते हैं, और 5 साल से छोटे बच्चे नहीं कर सकते, काफी लोग करते हैं, बस बड़े जो काफी एज के होते हैं। राफ्टिंग के शौकीन मुल्क भर के सियाह यहाँ आकर हिफाजती किट्स लगाकर राफ्टिंग करते हैं। पानी की मौजों से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुँचने का अमल बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि हर आने वाला शहरी इसे एडवेंचर करार देता है। और ये हमारा सेकंड टाइम है। इससे पहले हम जब आए थे हमने बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि पानी के साथ और इस एटमॉस्फेयर में ये सब बहुत इंजॉयबल है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और ख़ासतौर पे जब लहरों पे गाड़ी वो चलती है सारी बोट, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एडवेंचरस भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत मज़ा है, बहुत इंजॉय किया, और हमने इधर कैसिंग की है और इस पे बहुत मजा है। दरिया भी अच्छा है। राफ्टिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, यही वजह है कि इसमें हर उम्र के अफराद शामिल होकर इसे एंजॉय करते हैं। अदनान शाहिद, सच टीवी, वादी नारान। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।